Hello student, welcome to today's physics class. In this lesson, we will learn two very important concepts of motion. One is average speed and other is instantaneous speed. These concepts are frequently asked in all examinations and are also useful in our daily life. By the end of this lecture, you will be able to define, calculate and differentiate between average speed and instantaneous speed. Okay, let's begin. Before starting this lecture, I want to show you all the slides which I discuss later. First, the introductory of speed, average speed and instantaneous speed. And then move on second, learning objective I will discuss. And then difference, basic, what is speed? It is the basic definition of speed. And then goes to a average speed. Then go to a one image taken from important which help us to understand the concept average speed, and then one took example of average speed, and then importance of average speed and their applications, and instantaneous speed I will discuss. Then one image which help us to understand the instantaneous speed, and real life example of instantaneous speed and other examples, and I will discuss characteristics of instantaneous speed, then difference between average speed and instantaneous speed, and then quick revision. Okay, and then conclusion. After this slide, the lecture will be end. Getting my point? Now start. First, I take a pen. I will select a black pen. Okay, red pen I choose. Okay. This is a introductory topic, learning objective. So today I will discuss define speed, calculate average speed, explain instantaneous speed, differentiate between average and instantaneous speed, and apply this concept to our daily life situation. Getting my point? First, now go to the next slide. What is speed? Speed क्या होता है? Before understanding average speed and instantaneous speed, let's first understand what speed is. Speed means tell us how fast an object is moving. What I am saying to you, speed ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट कितना स्पीड मूव कर रहा है, मतलब स्पीड कितना मतलब ऑब्जेक्ट जो है कितना स्पीड वो मूविंग कर रहा है. In simple word, speed is the distance traveled by an object in unit time. That means what I am saying to you, speed is the distance traveled by an object per unit time. Getting my point? Speed is the distance traveled by an object per unit time. Or we can say speed is the distance traveled by an object in unit time. The formula of speed I have already discussed in the previous lecture, but I am also discussing now. Speed equal to distance by time. Its unit is meter per second and kilometer per hour. Both these units are very important in our day-to-day life. Getting my point? Now going to a next topic, which are average speed. So average speed, what is? Now let's talk about average speed. Average speed is the total distance travel by total time taken. Getting my point? In simple word, it gives the overall speed of the entire journey. That means what I am saying to you, average speed क्या बताता है, जो वो स्टार्टिंग जहाँ से वो जर्नी स्टार्ट किया था है और वो जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन वो रीचिंग पॉइंट होता है, यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, उन मतलब वो जर्नी का पूरा वो एक एवरेज बताता है कि वो जो स्पीड था वो इंटायर जर्नी में उतना था. मतलब वो जो स्पीड है वो आपका एवरेज स्पीड है जो इंटायर जर्नी में था उसके पास. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ पर हम क्या लिखें, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. और यू कैन ऑल्सो सेट इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर by total time taken. It is the formula. Getting my point? Note, average speed gives the overall speed during the entire journey. That means what I am saying to you, if a person start from A and goes to a B, it took 10 hours, let's suppose.
the speed of the entire journey, let's suppose a 40 kilometer per hour. That means what I am saying to you, if people are talking about that motions of an object are with someone, then they can use the object move 40 kilometer per hour entire the journey. That means per hour the speed of that object is 40 kilometer per hour. ओवरऑल स्पीड, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि पर एक मतलब हर एक घंटा अगर मान लीजिए 10 घंटा वो ट्रैवल किया था, तो अगर 10 घंटा उसको कोई देखा नहीं, वो एक बोला कि भाई मैं 40 के स्पीड में मैं मतलब पहुंचा वहाँ पे, तो अगर टोटल डिस्टेंस मान लीजिए वहाँ पर आपका था 200 किलोमीटर ए से बी जाने में, मान लीजिए इसको 200 किलोमीटर वो ट्रैवल किया था और उसको लगा था मान लीजिए 5 घंटा, ठीक है, ये 5 है। तो ये जो अगर एवरेज इसका निकालेंगे हम लोग, तो टोटल डिस्टेंस 200 बाय टोटल टाइम 5 घंटा, तो कितना हो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम लोग किसी भी टाइम पे तो उसका स्पीड हम नहीं बता पा रहे कि भाई वो 2 घंटा बाद इतना चल रहा था, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पे, तो उसका जो आपका स्पीड होगा वो तो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता गाड़ी जो जाएगा ट्रैफिक मिलेगा उसको, हो सकता है गेट मतलब आपका टोल ब्रिज रहे, हो सकता है हैवी ट्रैफिक रहे, तो उससे क्या होगा उसका स्पीड जो होगा वो वेरी करेगा। लेकिन वो लास्ट में क्या बोल दिया कि हम भाई 200 किलोमीटर चले थे लेकिन मुझे टाइम लगा 5 घंटा का। तो जो आपका इसको स्पीड हम निकालेंगे एक ओवरऑल का, जो 40 किलोमीटर पर आवर आएगा, वो बोलेगा कि उसका इंटायर जर्नी जो था 40 किलोमीटर पर आवर से वो मूव किया था। मतलब वो ए से स्टार्ट किया था कितने किलोमीटर प्रति आवर से, 40 किलोमीटर प्रति आवर से, बी तक पहुंचा वो 40 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ये फिक्स नहीं कि पर आवर ये 40 40 40 करके चला हो सकता है कहीं 60 चल रहा था, कहीं 70 चल रहा था, कहीं 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, क्योंकि ट्रैफिक तो होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि रोड में बाय ट्रैवल कर रहा है, तो वो एक समान तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि और भी सारे व्हीकल्स ऑब्जेक्ट रहेंगे जो मूव करेंगे वहाँ पर। तो ये जो एवरेज स्पीड बताता है वो एक ओवरऑल स्पीड बताता है पूरा इंटायर जर्नी का। गेटिंग माई पॉइंट? रिमेंबर दिस डेफिनेशन केयरफुली बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आपका 2s1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, इसको हम प्रूव कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा से इसको हम बता देंगे। अगर मान लीजिए दिया हुआ है A से B कोई ऑब्जेक्ट है जिसको जाने में लग रहा है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, या फिर हाँ मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, और B से A आने में उसको लग रहा है y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। तो इन दोनों का जो स्पीड दिया हुआ है उससे हम लोग कैसे एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो प्रूफ किया जाता है आपका, हम यहाँ पर 2s1 माने, s1 स्पीड जाने में और s2 स्पीड आने में, यहाँ पर हम x और y माने, तो x का टर्म में क्या होगा 2x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एवरेज स्पीड, इसको आप दिमाग में मत अभी याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है, बट कैसे आता है ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इमेज दिया हुआ एवरेज स्पीड का, जो क्या बता रहा है, इट टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज मूव ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। वही चीज़ है, ये कार जा रहा है तो हमको नहीं पता वो बीच में कितना स्पीड था, तो टोटल वो कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल किया, कुछ टाइम लगा उसको। तो देखिए टोटल डिस्टेंस मान लीजिए वो 120 किलोमीटर दो घंटा में चला था, और 180 किलोमीटर वो 3 घंटा में चला था। तो सम ऑफ 120 सम ऑफ 180 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर, एंड देन टोटल टाइम व्हाट 2 hours and 3 hours, total 5 hours. Then we divided 300 by 5 is equal to 60 km per hour. That means the result is 60 km per hour is the average speed of the entire journey, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? टोटल डिस्टेंस वही चीज़ लिखा हुआ, कोई रिमेंबर एवरेज स्पीड इज फॉर द होल जर्नी नॉट फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए नहीं होता, ये पूरा होल जर्नी के लिए होता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव ऑन करते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, एक कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर, और वही चीज़ दिया हुआ देखिए जो डिस्कस किया 30 किलोमीटर, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, इसमें 5 आवर लगा, फिर इसको डिवाइड किया तो 60 किलोमीटर पर आवर, जो एवरेज स्पीड आया वो आपका 60 किलोमीटर आया, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा इंटायर जर्नी का था, किसका था? इंटायर जर्नी का, ठीक है, ये पूरा इंटायर जर्नी का था। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हमारा डेली लाइफ में। तो एवरेज स्पीड इज यूजफुल इन मेनी सिचुएशंस, ओके, एप्लीकेशंस।
इट हेल्प अस टू एस्टिमेट ट्रैवल टाइम, ये एस्टिमेट बताता है ट्रैवल टाइम का। मतलब मान लीजिए कोई ए से बी जा रहा है, ठीक है, ये ए है, यहाँ से कोई बी जा रहा है, तो मान लीजिए वो पहुँचा 6 घंटा में, ठीक है। तो ये क्या बताता है, मतलब एस्टिमेट ट्रैवल टाइम बताता है कि वो उसका अगर मान लीजिए स्पीड था 40 किलोमीटर आवर, तो 200 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा वो बताएगा, ठीक है। मतलब वो मतलब एस्टिमेट ट्रैवल टाइम बताएगा, ट्रैवल टाइम, ठीक है। और क्या बताएगा, प्लानिंग, जर्नी, जर्नी को प्लानिंग करने में हेल्प करेगा कि भाई हमको वहाँ जाना तो हमको एवरेज इतना हमको लेके चलना होगा। मान लीजिए कहीं पर अगर स्लो हो रहे हैं तो हमको जब मौका मिलेगा, यानी कि जब आपका मतलब क्या बोलेंगे पूरा खाली रहेगा रोड, तो हम उसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ताकि क्या रहे, एवरेज जो रहे वो आपका कांस्टेंट रहे। जो माइंड मैप आप बनाएंगे एवरेज स्पीड का, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो आपका मेंटेन रहे। कभी आपका मान लीजिए 20 जा रहा, तो कभी 60 करना होगा, कभी 80 करना होगा, मान लीजिए कभी 10 हो गया, तो जो ओवरऑल स्पीड रहेगा वो आपका मैनेज रहेगा, ठीक है, ताकि जो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है वो हम मतलब करेक्ट टाइम में पहुंच पाए, करेक्ट टाइम में पहुंच पाए, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। एस्टिमेट बता दिए। कंपेयरिंग व्हीकल परफॉर्मेंस, मतलब गाड़ी किस तरह से चल रहा है वो बता सकता है। यूज इन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक में यूज किया जाता है, एक माइंड मैप बनाया जाता है कि भाई हमको वहाँ तक पहुँचना इतना टाइम में, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हम समझ गए। अब नेक्स्ट स्लाइड मूव ऑन करते हैं। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ लेट्स मूव टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या बोले, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब पर्टिकुलर मतलब क्या बोल रहे, कोई ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक है। कोई गाड़ी ए से बी जा रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी ए से बी जा रहा, तो ये जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, ठीक है। हम पूछ दिए भाई तुम 10 बजे यहाँ से निकले थे 10 AM को, और यहाँ पर पहुँचे मान लीजिए 4 PM को, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई तुम्हारा 12 बजकर 5 मिनट पर, 12 बजकर 5 मिनट पर तुम्हारा स्पीड जो था वो कितना था। तो वो जो स्पीड होगा वो आपका होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या बोल रहे, किसी मतलब एक मूवमेंट पर जो उसका स्पीड रहेगा वही होगा उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब क्या बोल रहे, इट इंडिकेट हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट ए स्पेसिफिक मूवमेंट, मतलब उस स्पेसिफिक मूवमेंट पे वो कितना स्पीड चल रहा था, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वर्ड मीनिंग मीन्स क्या होता है, वो स्पेसिफिक मूवमेंट, ठीक है, उस वर्ड का मीनिंग होता है एट दैट स्पेसिफिक मूवमेंट। गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद मूविंग और नेक्स्ट स्लाइड, एक स्पीड दिया हुआ है, देखिए इंस्टेंटेनियस। मान लीजिए ये स्पीडोमीटर है, ठीक है, ये स्पीडोमीटर है जो बाइक गाड़ी में रहता है। तो मान लीजिए उसका 80 किलोमीटर है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे हम अगर बोल सकते हैं, इमेजिन यू आर ट्रैवलिंग इन ए कार, अगर आप कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एट वन मोमेंट द स्पीडोमीटर शो 50 किलोमीटर, लेट सपोज यहाँ पर 80 किलोमीटर है, अगर हम हाँ 80 ये मानते हैं, ठीक है। तो आफ्टर अ फ्यू सेकेंड इट शोज 70 किलोमीटर, समटाइम्स चेंज 80 किलोमीटर, समटाइम्स इट डिक्रीज 40 किलोमीटर। तो वो जो टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, वो बताएगा उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। देयरफॉर क्या बोल रहे हैं, स्पीडोमीटर ऑलवेज शो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड नॉट एवरेज। मतलब जो स्पीडोमीटर होता है व्हीकल्स का वो स्पीड को दिखाता है, वो हमेशा क्या बताता है आपका इंस्टेंटेनियस को बताता है, ना कि एवरेज स्पीड को बताता है। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं घर में, ठीक है, मतलब घर से कहीं निकले गाड़ी से, तो हम अभी देखेंगे, जब भी स्पीडोमीटर को हम देखेंगे तो देखेंगे अभी 60 में चल रहे हैं, कभी 50 में चल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग उस पॉइंट पे देखते हैं कि अभी 60 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, तो उस टाइम अगर टाइम को हम लोग देखते हैं कि अभी 12 बज रहा है, 11 बज रहा है, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर मूवमेंट ऑफ टाइम होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है जो आपका व्हीकल्स में दिखता है। मान लीजिए 60 किलोमीटर 10 बज रहा है, तो वो जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जो मूवमेंट होगा वो, और उस टाइम पे जो स्पीड होगा वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मूव ऑन करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हेन यू लुक एट अ कार स्पीडोमीटर इट्स 50 किलोमीटर पर आवर, द रीडिंग इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। अदर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ अ ट्रेन पर्टिकुलर मूवमेंट, क्योंकि ट्रेन जो मूव करता है वो भी आपका फिक्स नहीं रहता, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो। तो वो जो पॉइंट ऑफ टाइम में जो होता है स्पीड वही होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ ए रनर ड्यूरिंग ए रेस, अगर कोई रनिंग कर रहा है तो कभी वो धीरे 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 जाएगा, कभी स्पीड जाएगा, कभी धीरे धीरे धीरे, तो कभी कभी बहुत स्पीड, तो कभी कभी धीरे। तो ये जो स्पीड होगा ये होगा आपका क्या,
इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड है ना ड्यूरिंग ए रेस, तो हम लोग उस पॉइंट पे देखेंगे अभी कितना इसका स्पीड है, अभी उसका कितना स्पीड है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्पीड है। अगर मान लीजिए ये सुबह 6 बजे से दौड़ रहा है तो हम बोलेंगे भाई 6:05 पर उसका स्पीड कितना था, 6:10 पर उसका स्पीड कितना था। वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड रहेगा वो उसका इंस्टेंटेनियस रहेगा। स्पीड शो बाय मोटरसाइकिल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग स्पीडोमीटर जो गाड़ी में रहता है वो वही शो करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस बताता है ना कि एवरेज बताता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते, समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या की फीचर है उसका, मेजर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताएगा, मे चेंज कंटिन्यूसली, ये मतलब हर बार चेंज होगा, ऑप्टेन डायरेक्टली फ्रॉम स्पीडोमीटर से हम लोग डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। यूजफुल मॉनिटरिंग स्पीड, ये क्या मदद करता है, हमको मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है कि भाई अभी इतना स्पीड चल रहा, अभी इतना हमको जाना है और थोड़ा डिक्रीज करना, ज़्यादा करना, इंक्रीज करना, ठीक है। तो वो चीज़ ये बताता है कौन, इंस्टेंटेनियस स्पीड। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड मूव ऑन करते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैलकुलेट ओवर ए टाइम इंटरवल, मेजर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, ये ओवरऑल टाइम को बताता है एवरेज स्पीड, और ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बताता है। यूज टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, ये टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, ये एक स्पेसिफिक मूवमेंट के लिए होता है। रिप्रेजेंट ओवरऑल मोशन, ये टोटल मोशंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये मोमेंटरी होता है, मतलब उस क्षणिक पल के लिए ये होता है। ये कैलकुलेट मैथमेटिकली होता है, बट इसको हम लोग रीड करना पड़ेगा डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पीडोमीटर, और अगर कोई न्यूमेरिकल रहेगा तो वो दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका स्पीड क्या था, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं, क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। एवरेज स्पीड क्या होता है, ओवरऑल स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, ये ओवरऑल स्पीड को बताता है। डिपेंड ऑन टाइम, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल है, ये टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम पे ये डिपेंड करता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका कितना स्पीड था। डिस्प्ले बाय स्पीडोमीटर, ये स्पीडोमीटर क्यों बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि ये हम लोग का डेली लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डेली लाइफ का। गेटिंग माई पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन क्या निकला आपका, स्पीड डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, स्पीड क्या बताता है ऑब्जेक्ट कितना स्पीड मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है। एवरेज स्पीड क्या बताता है, ओवरऑल स्पीड जर्नी का बताता है। इंस्टेंटेनियस गिव द स्पीड स्पेसिफिक, इस इंस्टेंटेनियस क्या बताता है, स्पेसिफिक इंस्टेंस को बताता है। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मोशन इन आवर एवरीडे लाइफ। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो क्या आज हम लोग पढ़े, today we learn the meaning of speed, average speed and instantaneous speed. We also learn how to calculate average speed and how instantaneous speed is measured. Understanding this concept will help you solve numerical problem and answer examination question confidently. Thank you for watching. ठीक है, thank you for watching. See you in the next class.